Hello viewers, welcome to my channel. So today we'll start our new series on Node.js. So before learning Node.js, you should know JavaScript clearly. So visit our JavaScript playlist in description box. So we should start with Node.js now. We should know or in confusion that Node.js is a framework or library. I want to clarify that Node.js is neither a framework nor a library. So what is Node.js? Before knowing what is Node.js, we should know about JS little bit. JavaScript runs inside browser on various engines. Yes, JavaScript runs inside various engines. V8 is inside Chrome engine. Mostly JavaScript runs in V8 engine, which is inside browser. Node.js developers does that. V8 embedded with Java C++ gives Node.js. So they do that. V8 should be embedded with C++ so that C++ that is interactive with native machines clearly is gaining some properties and give Node.js a productive environment and it interact with native machines also. So now JavaScript can run outside a browser also with the help of Node.js. So you can say that Node.js is a part of JavaScript. So what is Node.js? Node.js is nothing but a runtime environment for JavaScript. You can now say that Node.js is not a framework or not a library. So let us take an example of this. So we should visit our Windows PowerShell and write console.log hello. We should know it will print nothing because it doesn't know what is console.log. We should say, as we have installed Node.js in our system, we should say node. Now it will read welcome to Node.js. Now we can write console.log hello. Now it will print hello. And if you want to do some operations, write 2 plus 3 5, it will write 2 plus 3 5. So how we can do that? We can do it by Node.js. If we want to do the same with our browser, what we will see? We will see, go to console and write console.log hello. And we will see it will print hello. And if you want to do this operation, we will see. So what is this? This is JavaScript which is running inside browser, and this is the first one, which is JavaScript which is running outside of the browser. It will not running here because it is outside of browser. With the help of Node.js, we can see here we have implemented node here and then printed console.log hello. So it will print hello. With the help of Node.js, we can run outside a browser also. So this is Node.js. Now you can clearly say Node.js is a runtime environment for JavaScript. This is the introduction section of Node.js. Now we will see installation of Node.js. Now go to the browser first and write node.js org and go on to node.js run JavaScript everywhere. Here we can see that download node.js LTS. What does LTS means? LTS means long-term stability. It means it is supposed to be more stable than current version. If you see sometimes here you can see current download current node.js. It means it is current version. If you want to see new features that is implemented on node.js, then you can go for current version. If you want to be more stable node.js version or environment, you can choose this. So I will install this and start downloading. I have already downloaded, then I will delete this new version. So I have installed this in our system. Just click next, 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 nothing else. And we come here in Windows PowerShell and write node to check it is correctly installed or not. Node minus minus version, yes. Node of version 20.13.1 is installed correctly. So to check whether our node.js is current or LTS version, we can see here it starts with 20, that is even number. It is supposed that even number version is LTS version, that is long term stability, and the number which starts with even odd number, that is supposed to be current version. So this is the criteria to introduce or choose the LTS version or current version. Now we will implement our node. Yes, now we can write anything
that is related to JavaScript, because in we can now run our JavaScript outside a browser. If you want to do some operation, then we can do here. So in this way, we have installed and set up our Node.js in. So one thing you want also see that if you click npm, npm is not defined. So start another PowerShell and write npm. You should see npm. This npm is basically node package manager that is already installed when you install node.js. It manages all node.js functions. So this is the some of the command to get into npm, and this is our function. So if you want to check or confirm npm is installed in our system, you can simply write npm minus minus version. Yes, npm is installed with version 10.5.2. So it is our introduction or installation part. Now we will look up onto the first code of our node.js. So now we will run our first Node.js code. So create a file hello.js and simply write console.log hello like this. And to call this function as node, write node hello.js. Make sure you have installed your Node.js correctly. To check it, you can write node minus version. Node minus minus version, double minus is required here. And to cross check npm is installed, you can write npm minus minus version. So npm and node both are correctly installed in our system. Now we can run node hello. You can simply write node hello, it will print hello. It is because Node.js only writes in JavaScript, so it is printed in like this in node hello or node hello.js both. So now we will see our some of the code like node here console.log window, then run it. It is not printed here. Why? If you go to the console and here you can write go to console and write the same code console.log window, you will see it runs here because this is inside browser and this is outside browser. Some of the code that is in JavaScript related to DOM manipulation or window object is not run in our Node.js. So we should go to the browser and then run that code. Like if you say some of the code like console.log alert message. If you are a JavaScript developer, you should be familiar with this. Hey, and run this code. You will see. So comment out this because it executes line by line, and now run it. You will see alert is not defined, and at the same time if you go there and write console.log alert and write hey, you will see alert message comes here. So what is this? This is because this is DOM manipulation part or Windows object part. That's why it is not running here, and in our browser, that is Firefox, it is correctly running here. It shows that our JS file, some of the codes is not supported inside or outside of the browser, and some of the code easily supported. So now we will see some of the code that is supported in our outside of the browser. So what are that code? That are core functionalities related to our JavaScript that are correctly written here and produced here. So now we will check one thing, that is npm, and write npm in it. Now what is npm init? So to start our project, we should set our template or file. To run our project in it smoothly, we should write npm init. It is a template for running our project. So we will write npm init, and package name, it is calling our package name. You can write as you wish. Test command no.
And is this okay? Yes. Now we will ready with our project, and now we can write our project. It will create a package.json file which includes some of the dependencies that we downloaded for in the need of our project. So this is package.json. It includes name of the project, version that we see here. It can ask if we can change it manually also. So if you want to run this particular code with our own name, then we can simply write here like tech times, and right here we can write the following name, that is node hello.js. Now we can run npm run tech times. It will print the same code. Alert is not defined. Firstly correct it, then run it there. Now we will see it runs hello because it is now correctly embedded here in our package.json. Now it is not a good practice here because we will start with start and node hello.js. Now we can simply write npm start. It will run our project too, because if you configure this file with backend or other functionalities, you don't have to select all the files and run that file. You simply write or create a package.json and include your code or name, that is start, and to start your project you can simply write npm start and your project gets started. This is the thing you should keep in mind, how to deal with this package.json file, which includes all the dependencies that are required in our project. So this is for our first code that is written in Node.js. Now we will look our file modulation. Now we will see our file modulation part. So what is modulation? To import or export different files from another files, we use modulation. Why it is necessary? It is necessary because if we want to see a larger project into smaller ones so that we can understand it clearly and read it all parts clearly, we use our modulation part, that is breaking down a larger project into smaller files. So we will do here like if we see an example here, if you want to do some mathematical calculations and don't want to include that particular mathematical calculations in this file, we will simply create a new file, that is math.js, and here we can import our whatever the calculations we can write or the logic we will use here, and then we will we will export this particular logic in our hello.js file, and whatever the calculation we will doing here we will import here and do our whatever we want. Okay, so let's do here. We will first do our calculation. So to do that we will write like this. Let's create a function name function add. To add two numbers we will take a b and return like this, return a plus b. So our function is created. To import that particular function add into hello.js file, we will use this modules dot export equal to add. So this is now exported in. So to import this we use const file name like const add equal to require dot slash whatever is the file directory, that is dot slash math. Now we can call console dot log add 2,3 like this. So we will cross check it. We have exported this function. We have exported this function. No, we will not use as an object. We will simply export it from here and import it here like this by using require function. Require function is inbuilt function in JavaScript that is used to call the other file component in our present directory. So
So we can now call this function add in our hello.js file, which is, do the calculation of adding two numbers, that is 2 and 3. Now we will write our script npm start, and this is causing error. Modules.export is equal to add. We will see what is the so we will use module.exports. Sorry, keyword name should be right. So now we will run again, and we will see here our calculation is working. We have do the logic in another file and run that logic in another file, and we will do this by import export. So similarly we want to create another function, like create another function that is used to calculate subtraction between two numbers. So simply copy it, paste here, and made it to subtract two numbers a and b. And so to export multiple files from this math.js to hello.js, we use object. Why we use object? Because if we want to export our module, first question comes in mind, why we can't do this like this. Module.exports equal to subtract function, then we will call here the same function like this, paste it here, and subtract. Here we can only see subtraction process occurs. See, console.log subtract is not defined. Why? Because this is not writing here. Write it like math, do the calculation, call it here, add is not defined. So we should do this like math.require subtract. Now we can save it here and now call it. Add is not defined, so comment it out here. Now we can call. So it is calling -1 subtract function. Why it is not calling add function? So if you want to change the name, add, and call it like this, add. So what happens here? It calculates the same, that is subtraction. If we want to import some other file into our current directory, then we can use any name by your choice. Doesn't matter, it is defined here that our function name is add, so we supposed to write add here. No, you can use another name also to call that particular function, so you can easily calculate and do the particular calculation here. So we will be able to calculate, that is subtraction function here, but we can't do that. This is not a good practice, because here our add function is not doing any function, add is not doing any work. So we will put this both function in an object like this, cut it here, and put that whole function in an object. So now we can import both the files in our current directory, that is hello.js, and import it like this, add comma subtract. Now we can do both the calculations here. If we want to use subtract, then we can subtract here. If we want to use add, we can use add here. So both the functions that is defined in our math.js can be used in hello.js clearly. This is the use case of multiple exports. So in this way we can export and import our files and do our modulation tasks that makes our project functions very clearly and makes it readable for others. Before going to our file handling part, we should know how Node.js work. What is the architecture of Node.js? So first, how does client make some request? Client, who is client? Client is the user that is making some request to the server. So client making request to the server, these all requests get queues in our event queue, and the event loop that is running in our server continuously takes up the queue and give it to the blocking or non-blocking part. So how does it work? Event loop checks and works on FIFO principle, that is first in, first out. If the task comes first, it can be treated first, and all the tasks
comes last can be treated as last. So it takes up the request, checks if the code is blocking or non-blocking. If our code is non-blocking, it checks and gives the response to the client at the same time. But if our code is blocking, it takes some time. Why? Blocking means a synchronous function. It involves fetching requests from database, so it will take some time. So let us understand what happens when our code becomes blocking. So move this up here and give some space to for understanding blocking operation. Now we will understand blocking operation. Picks up this. Okay, good. So let's start. If our code is blocking, let's suppose this is blocking code, that is synchronous code. It makes request to the thread list. This is list of threads. List of threads. You can say threads is emphasizing here workers. Thread implies workers which can do task for blocking code. So it asks Node.js for give some threads to work on blocking code, and after working on that particular blocking code, it gives request to the server that our code is fine and give all the response. In this way our blocking code works. Some drawbacks of blocking code are, you can understand here, blocking code, if the requests are in larger amount, then all the event get queues in larger amount, and if all the codes are blocking code, then at some point of time all the threads are busy doing tasks, and when all the threads are get exhausted or completed, then event get queued and some of the tasks cannot be performed on time. So this is the main drawback of blocking code. Now, this is the whole architecture of Node.js. We can understand here by this diagram. So now we can understand file handling part. We will talk about file handling. We can use fs module here. So first question arises here, what is fs module? Fs module is a module that is used to do file operations. So what are the file operations? File operations like read, write, etc. So to declare this file module, we now create a new file named file.js. Okay, now we'll write our first, to declare file module, const fs equal to require, and require is the built-in function in Node.js, so we can use it here. Now to create a file, we can write fs dot write file. You can see यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, फाइल राइट फाइल एंड राइट फाइल सिंक. यहाँ पे हमें कोई एक यूज़ करना है, तो एक ये सिंक्रोनस फंक्शन है और एक जिसमें कुछ नहीं लिखा है वो असिंक्रोनस फंक्शन है. इस दोनों में डिफरेंस इस चीज़ का आता है कि कुछ थोड़ी देर पहले देखा था कि सिंक्रोनस फंक्शन एक ब्लॉकिंग कोड होता है और असिंक्रोनस फंक्शन नॉन ब्लॉकिंग कोड होता है, जो फंक्शन को हमें बिना किसी लेट या ऑन टाइम अराइवल के लिए हमें हमेशा तैयार रहता है और उस फंक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट कराता है. लेकिन सिंक्रोनस फंक्शन क्या करता है, वो थोड़ा टाइम लेता है और जो भी हमारे थ्रेड्स के पास रिक्वेस्ट जाते हैं वो थ्रेड्स से कुछ वहाँ के वर्कर्स जो कि हमारे थ्रेड्स कहलाते हैं वहाँ से उनको लेके उनसे काम करवाता है और देखता है कि ये रिक्वेस्ट सही है या नहीं. अगर सही होता है तो वो हमें क्लाइंट को पास करता है, वरना वो और भी टाइम लेता है और बहुत सारे रिक्वेस्ट क्यू हो जाते हैं जिससे कि यूज़र्स को काफ़ी टाइम लगता है. हमें असिंक्रोनस फंक्शन हमेशा यूज़ करना चाहिए और सिंक्रोनस को अवॉइड करना चाहिए. तो चलो यहाँ पे फ़िलहाल हम क्या करेंगे, राइट फाइल सिंक यूज़ करेंगे और एक फ़ाइल क्रिएट करने के लिए ./test एक डायरेक्टरी सेट करेंगे और वो क्या करेगा, एक test.txt फाइल क्रिएट करेगा विथ इट्स कंटेंट हेलो. तो अगर हम इसको रन कराएं तो npm start. तो यहाँ पे hello start. तो अगर हमें file.js फाइल रन कराना है तो node file.js, वो तो था हमारे ओवरऑल सर्वर को स्टार्ट कराने के लिए जिसमें hello.js इंक्लूड था. लेकिन यहाँ पे क्या है,
हमें फाइल डॉट जेएस को इंक्लूड रन कराना है, तो इसीलिए हमने रन कराया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेस्ट डॉट टी नाम से एक फ़ाइल बन गया जिसका कंटेंट है हेलो। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने एक फ़ाइल को राइट किया, लिखा, और किसकी हेल्प से? सिंक्रोनस फंक्शन की हेल्प से। तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं सिंक्रोनस फंक्शन या ब्लॉकिंग कोड, ब्लॉकिंग ऑपरेशन। ये थोड़ी देर पहले ही देखा था। ठीक है, इस तरीके से सिंक्रोनस फंक्शन काम करता है। अगर हम सेम चीज़ असिंक्रोनस से लिखें, असिंक, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एफ एस डॉट राइट, राइट फाइल, और यहाँ पे कुछ भी असिंक्रोनस कीवर्ड कुछ भी नहीं यूज़ करना, बस ये समझ जाएगा कि ये असिंक्रोनस फंक्शन है, और वो ऐसे रीड करेगा टेस्ट डॉट टी एक्स टी, एंड इसका कंटेंट जैसे कुछ भी हेलो सिंक, सिंक, एंड अब देखो ये भी काम सेम ही कर रहा है राइट फाइल सिंक की तरह ही, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक एरर हैंडलिंग के लिए हमें एक एरो फंक्शन बनाना होता है जो क्या करता है, अगर जो हमारा ये वर्क सही है तो सही है, अगर नहीं सही है तो एरर के लिए चेक करने के लिए जाएगा और उसको चेक करके वो रिटर्न करेगा। तो असिंक्रोनस फंक्शन इस मायने में ये अच्छा भी हो सकता है कि ये हैंडल कर रहा है हमारे एरर्स को। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, अगर हमें इस वाले को देखें तो इसमें अगर हम कुछ और कंटेंट चेंज करके अगर सेम कोड को हम एग्जीक्यूट कराएं इस तरीके से, और यहाँ पे हम कर दें हेलो टू, तो यहाँ पे क्या होगा? चेंज किए और टेस्ट डॉट टी एक्स टी में देखें तो खैर वो तो असिंक को अभी प्रिंट करा रहा है, तो इसको थोड़ा सा करते हैं कमेंट आउट और इसका एग्जांपल ठीक से देखते हैं। तो टेस्ट डॉट टी में देखते हैं यहाँ पे हेलो टू आ चुका है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि जो फर्स्ट लाइन है उसको ओवरराइट करके सेकंड लाइन प्रिंट हो जा रहा है। अब अगर हम इस असिंक्रोनस फंक्शन को कॉल कराएं और देखें क्या होता है, तो ये क्या करेगा, एक अपना अलग फंक्शन रन करेगा जो कि है असिंक। तो ये होता है काम असिंक्रोनस, यानी कि नॉन ब्लॉकिंग कोड, नॉन ब्लॉकिंग कोड, और ये होता है अपना ब्लॉकिंग जो कि होता है सिंक्रोनस। तो अभी डेवलपमेंट में देखा जाता है कि ब्लॉकिंग कोड को अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि यूजर्स को काफ़ी टाइम लगता है और ऑन टाइम रिक्वेस्ट नहीं जा पाता है, तो इसीलिए ब्लॉकिंग कोड को अवॉइड करना चाहिए और नॉन ब्लॉकिंग को देखना चाहिए जो कि होता है असिंक्रोनस कोड। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा एरर हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर अगर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी देखें इसका, तो फाइल हैंडलिंग का होता है, ये तो था रीड का, राइट का, तो इसमें देख लेते हैं एक रीड का, कि अगर फाइल को रीड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं contacts डॉट टी एक्स टी, और इसमें कुछ दे देते हैं कंटेंट शिवा और कुछ नंबर। तो अब चलते हैं अपने फाइल डॉट जेएस में और उसी को रीड करते हैं यहाँ से। तो उसके लिए एफ एस डॉट रीड फाइल, फाइल सिंक यूज़ करो या फाइल यूज़ करो दोनों सेम होता है। ठीक है, इस तरीके से डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट्स, अब उसकी डायरेक्टरी को सही से लिखना होता है क्योंकि अब ये हमारा कॉन्टैक्ट्स फाइल इसी डायरेक्टरी के अंदर है जो कि हेलो, तो सिंपली डॉट स्लैश, अगर ये किसी फोल्डर के अंदर होता तो उस फोल्डर का नेम पहले, फिर उसके बाद स्लैश में कॉन्टैक्ट्स डॉट टी एक्स टी फाइल। तो ये अपना इनकोडिंग है UTF-8 में, तो उसके लिए UTF-8 कर देते हैं और ये होता है अपना रीड करने के लिए। चलो इसको कराते हैं कंसोल, ताकि ये हमें दिखे कि हाँ ये रीड कर रहा है और रीड करके हमें कंटेंट भी प्रिंट करे। तो इस तरीके से कंसोल करा दिए और रन, तो ये कंटेंट हमें यहाँ पे दे पा रहा है रीड करके अपने कॉन्टैक्ट डॉट टी एक्स टी फाइल से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं कि अब ये तो था सिंक्रोनस फंक्शन का मतलब ब्लॉकिंग कोड, अब इसको असिंक्रोनस से लिखते हैं सेम रिजल्ट को। कैसे लिखेंगे? इसके लिए सिंपली एफ एस डॉट रीड फाइल, असिंक्रोनस में असिंक्रोनस कीवर्ड यूज़ नहीं होता है, अगर ना यूज़ हुआ तो समझ जाना चाहिए कि असिंक्रोनस ही है, डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट्स डॉट टी एक्स टी, और यहाँ पे इनकोडिंग इसका दे देते हैं UTF-8 इस तरीके से। और एक कॉलबैक फंक्शन जो हमेशा चाहिए होता है असिंक्रोनस कोड के लिए, एरर एंड रिजल्ट दो चीज़ें देगा एज एन आर्ग्यूमेंट, पास करेंगे इसमें, और
ये चेक करेगा सबसे पहले, अगर अपना एरर है तो ये क्या करेगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा लॉग के थ्रू, और वो मैसेज होगा एरर का, एरर, और इस तरीके से ये एरर दे देगा। अगर एट द सेम टाइम अगर ये हमें सबसे पहले तो इसको करते हैं कमेंट आउट, ताकि ये दोनों सेम ना रीड हो और ओवरराइट का प्रॉब्लम भी हट जाए। तो अगर हमारा एरर है ही नहीं, एल्स केस, तो ये सिंपली हमें रिजल्ट प्रिंट कर दे इस तरीके से। और इसको देखते हैं रन करा के। तो एरर है console.log रिजल्ट, तो इसको करते हैं कमेंट आउट। तो यहाँ पे बता रहा है एरर, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये एरर क्यों बताया, console.log रिजल्ट, तो ये बता रहा है 10th लाइन में console.log रिजल्ट हो रखा है, तो हमें इससे भी हटाना होगा, तभी होगा क्योंकि सेम लाइन प्रिंट हो रहा है 2 बार। तो इसीलिए वापस से करते हैं, और ये हमें कंटेंट दे पा रहा है अपने contacts.txt से, और ये प्रॉपर दे रहा है हमें असिंक्रोनस कोड रन करके। यूज़र को इसमें वेट करना नहीं पा रहा है। यहाँ पे तो चलो एक यूज़र है, काम हो रहा है। मल्टीपल यूज़र्स को हैंडल करने के लिए असिंक्रोनस फंक्शन हमेशा हेल्प करता है। वो क्या करेगा, हम लोगों ने पहले ही देख रखा है अपने Node.js आर्किटेक्चर पार्ट में, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़े बहुत और भी डिफरेंस, जैसे कि सिंक्रोनस असिंक्रोनस को देख के कैसे समझाया जाए कि हाँ ये सिंक्रोनस है, ये असिंक्रोनस है, उसकी वर्किंग किससे तो समझ ही गए। तो एक चीज़ होता है जैसे असिंक्रोनस ऑलवेज एक्सपेक्ट अ कॉल बैक लाइक दिस। जैसे यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं कि कॉल बैक फंक्शन जहाँ पे भी दिखे, अपने असिंक्रोनस फाइल समझ जाना है कि यहाँ ये है असिंक्रोनस फाइल। अगर कॉल बैक नहीं दिखे तो वहाँ पे सिंपली दिख ही रहेगी कि ये फिर सिंक्रोनस कोड ही है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे फाइल्स में ऑपरेशंस करते हैं। कुछ और ऑपरेशंस भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर कभी यूज़ आए उसका तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं। तो अपना अगर हमें अपेंड करना है, जैसे ओवरराइट का प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे कि अगर हम सेम फाइल को यहाँ पे लिखते और कंटेंट चेंज करके यहाँ पे लिखते, तो उस कंटेंट को हटा के दूसरा कंटेंट अपलोड हो जाता जो यहाँ पे था रिजल्ट में। और अगर हम ये जो कॉन्टैक्ट और txt का था सिर्फ उसी को ओवरराइट करके लिख देता अगर हम दूसरे फाइल को रीड कराते तो। लेकिन अब इस ओवरराइट को प्रॉब्लम को हटाने के लिए अपेंड मेथड आया। अपेंड मेथड क्या करेगा, उसी में नेक्स्ट लाइन में चाहो तो नेक्स्ट लाइन में या उसी लाइन में अपेंड कर देगा उस कंटेंट के जस्ट बगल में। तो इस तरीके से हम अपेंड फाइल, अब ये भी सिंक्रोनस असिंक्रोनस है, यहाँ पे सिंक्रोनस यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें इंक्लूड करना है अपने टेस्ट फाइल में, तो इसके लिए हम लोग टेस्ट फाइल में जाएंगे डॉट स्लैश के थ्रू, डॉट स्लैश टेस्ट डॉट टी एक्स टी इसे, और कॉपी कर लेते हैं। और इस तरीके से अगर हमें वहाँ पे कुछ वेरिएबल कंटेंट दिखाना है, जैसे कि हर बार कंटेंट चेंज हो, थोड़ा डायनेमिक लगे कि ये कंटेंट हर बार चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक बैकटिक्स और उसके अंदर डेट डॉट नाउ। उससे क्या होगा, डेट डॉट नाउ अगर फॉलो कर रहे हो, उप्स वाले में देखा होगा, ये रैंडम नंबर्स हमें प्रिंट करके देता है, एक रैंडम 10 डिजिट नंबर भी दे देता है हमें प्रिंट करके। और तो बेसिकली ये टाइम ही बताता है हमें कि टाइम क्या हो रहा है अभी का डेट के साथ, ठीक है। तो हर बार अलग अलग बताएगा क्योंकि हर बार टाइम चेंज हो जाता है थोड़ी देर में ही। तो हे देयर, और अगर हम नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं अपना आउटपुट, तो बैकस्लैश n लगा दिए और बैकटिक से क्लोज, इस तरीके से। और यहाँ पे हम देखेंगे अब इस फाइल के आगे। अब चलते हैं अपने test.txt, हे देयर। तो यहाँ पे ये अपेंड हो चुका है, और अगर हम वापस से इसको रन करेंगे तो वापस से अपडेट होना चाहिए इसको। तो चलो थोड़ा सा करते हैं, सबको हटाते हैं यहाँ से, सबको करते हैं कमेंट आउट, ठीक है। इस तरीके से कमेंट आउट कर लिया इसको, और test.txt भी सही है, ये सब सही है। तो इसको यहाँ पे करते हैं, अब करते हैं test.txt। तो यहाँ पे इसको प्रिंट करके देना चाहिए अपने फाइल को, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें हर बार अलग नंबर मिल रहे हैं test.txt में,
यहाँ पे 04, और नेक्स्ट टाइम करेंगे तो रैंडम नंबर्स ही प्रिंट करके देता है, तो 22 ऐसा करके चेंज होते जा रहा है, और टेक्स्ट हमारा हे देयर इस तरीके से, और ये हमें यहाँ पे यही प्रिंट करके दे रहा है। अगर ऐसे ही कुछ ऑपरेशंस जैसे देख लेते हैं कि इस टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है दूसरे टेक्स्ट के अंदर, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉपी सिंक का। तो कॉपी सिंक को कैसे लिखते हैं, fs.cp sync, और उसके अंदर हमारे जैसे डॉट स्लैश टेस्ट डॉट टी एक्स टी को हमें कॉपी कराना है किसी और फोल्डर के अंदर, तो उसके लिए हम सिंपली ऐसे डायरेक्टरी सेट करते हैं, एक कॉपी फोल्डर के अंदर जाते हैं, और सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग में ही होना चाहिए, डॉट स्लैश कॉपी, एक फोल्डर है उसके अंदर एक टी फाइल है, ये अब इसके अंदर क्रिएट करेगा अपना इस सेम fs.cpsync, तो टेस्ट का सारा कंटेंट cp sync के अंदर चले जाएगा, और ये रहा कॉपी, कॉपी के अंदर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर जो भी चीज़ थी हे देयर अपने file.js की। अच्छा, तो अब देखो एक चीज़, यहाँ से जो भी कंटेंट था test.txt का, ये उठ के जा रहा है अपने कॉपी txt में, तो वही बोल रहे थे कि जो भी टाइम होता है अपना date.now, वो प्रिंट करता है हर बार अलग अलग होता है, और उसके बाद हमारा हे देयर, तो यहाँ पे प्रॉपरली आ नहीं पा रहा था test.txt में, पता नहीं किस रीज़न से, क्योंकि इसका स्पेस हेलो सिंक खा जा रहा है, तो जो लास्ट का नंबर था यहाँ पे ये रहा, तो जो लास्ट का नंबर था बस वो दिख पा रहा है, क्योंकि इसका जो स्पेस है वो हेलो असिंक खा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर नहीं, पर कॉपी करके हम लोगों ने देखा कि ये प्रॉपर प्रिंट हो रहा है विद द मैसेज हे देयर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है कॉपी सिंक। और अगर हम बनाए हुए फाइल को ही डिलीट करना चाहें तो उसके लिए हम करेंगे कुछ फंक्शन होते हैं डिलीट के लिए, fs.unlike। अब ये अनलाइक क्या करेगा, अनलाइक नहीं अनलिंक, बेसिकली लिंक ब्रेक करना, और ये होगा सिंक्रोनस इस तरीके से, और डॉट स्लैश कॉपी से, कॉपी के अंदर से हमें टेक्स्ट फाइल डिलीट करना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको, और वापस से रन करा देंगे ये। तो अब कॉपी के अंदर चलते हैं, तो कुछ भी नहीं है, वो फाइल डिलीट हो चुका है जो हमें डिलीट करना था यहाँ से। तो अब हम देखते हैं कि अभी तक जो भी हमने किया उसका एक प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स मिल जाता तो और भी अच्छा होता, तो फाइल मॉड्यूल में वो भी है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे fs.state_sync। तो fs.state_sync से हम क्या कर सकते हैं, एक स्टैटिस्टिक्स मिल सकता है कि हमें अभी तक हमने क्या किया। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का चाहिए तो उसके लिए हम लॉग करके देखना चाहेंगे कि हमने अभी तक क्या किया, और हमें यहाँ टर्मिनल में दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम लॉग करेंगे और fs.state_sync जो इसका होता है वो लिखेंगे, और हमें किस फाइल का चाहिए, किस फाइल के साथ अभी तक हम लोगों ने काम किया है और इसके साथ क्या क्या किया है, तो वो भी देखेंगे test.txt, ये रहा। और अगर हम इसका स्टैट्स देखें तो ये रहा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मोड एंड लिंक यूआईडी जीआईडी आरडेफ बीएल के साइज जो भी था, साइज 24 ब्लॉक्स, कितने कितने टाइम में किया वो भी था, बर्थ एम एक्स ए टाइम एम टाइम, तो जो भी हमने किया उसका टाइम वगैरह बता रहा है, और साइज़ बता रहा है कि कितना हो गया, ब्लॉक्स कितने हो गए, तो साइज़ 24 हो गया, हाँ 24 हो गया, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है और स्टैट्स दे रहा है। तो इसी तरीके से अगर हमें कुछ नई फाइल्स बनाने हुए, नई फोल्डर्स बनाने हुए, और तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। और लास्ट हम लोग देख लेते हैं, वैसे तो फाइल मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें करने को, लेकिन जो जो चीज़ें जो हमें प्रोजेक्ट्स में यूज़ आ सकती हैं, बस वही सब चीज़ों को देख रहे हैं हम यहाँ पे, मोस्टली चीज़ें जिससे हमें आइडिया लग सके कि एफ एस मॉड्यूल कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू क्रिएट रिकर्सिवली अ फंक्शन इट कैन बी डन बाय, तो रिकर्सिवली एक फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम लोग एक डायरेक्टरी बनाएंगे सबसे पहले। तो एक डायरेक्टरी बना लेते हैं fs.mkdir, ये तो शुरू से यूज़ होते आ रहा है, और ये होगा सिंक इस तरीके से। और एक डायरेक्टरी बना लेते हैं जैसे माई डॉक्स, इसके अंदर सेव करा देते हैं दो फाइल्स या फोल्डर्स ए बी, ठीक है इस तरीके से। और रिकर्सिव फंक्शन को हमेशा ट्रू कर देंगे, रिकर्सिव ऑलवेज ट्रू। ये हमें क्या करेगा, जो भी हमने रिकर्सिव फंक्शन को बनाया है
उसको हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे इस प्रॉपर लाइन से, एक रिकर्सिव फंक्शन को बनाने का ट्रिक। तो ये था हमारा प्रॉपर जो भी हमने फाइल मॉड्यूल से रिलेटेड किया यहाँ पर, ठीक है। ये सिर्फ अपने नोड जेएस में ही हो सकता है। जावा स्क्रिप्ट में अगर ये सारी चीज़ें करें तो वहाँ पे ये सब चीज़ें सपोर्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि ये नोड जेएस में ही एम्बेडेड आता है और ये आप नोड जेएस से ही कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइल मॉड्यूलेशन, सॉरी फाइल हैंडलिंग। So next we will look upon to the HTTPS server, how the server makes request to the browser. So let's look upon to this. अब हम लोग देखेंगे HTTP सर्वर कैसे बनाते हैं Node.js में। तो उससे पहले इन्वायरमेंट सेटअप, तो इसमें एक फाइल क्रिएट करेंगे। उससे पहले एक फोल्डर, उसी में सर्वर नाम का फोल्डर क्रिएट करें और इसके अंदर एक सर्वर डॉट जेएस फाइल है। अब इसके अंदर चलेंगे तो इसके डायरेक्टरी में जाने के लिए cd सर्वर। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले npm init प्रोजेक्ट सेटअप के लिए थोड़ी देर पहले देखा था npm init करना होता है और ये पैकेज नेम पूछेगा, कुछ नहीं रखना है, वर्जन डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, टेस्ट कमांड नो 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 और यस, ठीक है। तो अब ये सेटअप हो चुका है अपना प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो अब जब HTTP सर्वर बनाना है तो उसको कॉल कराने के लिए हम लिखते हैं const HTTP और इसमें जो बिल्ट इन आता है रिक्वायर मॉड्यूल फंक्शन जो Node.js का होता है उसको लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट HTTP लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एक ये कोई डायरेक्टरी नहीं है, ये बिल्ट इन है कि HTTP सर्वर बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड करना होगा HTTP को। ये ऑलरेडी बिल्ट इन आता है इस मॉड्यूल में HTTP, तो इसीलिए हम इसको रिक्वायर करके इसके अंदर लिखते हैं। चलो अब सर्वर बनाने के लिए लिख देते हैं नाम const my server इक्वल टू http डॉट क्रिएट सर्वर और इसके अंदर अब दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे। कौन कौन से? एक होता है रिक्वेस्ट, एक होता है रिस्पॉन्स। अब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या होता है? तो रिक्वेस्ट होता है बेसिकली कि कैसे हम आर्ग्यूमेंट, मतलब जो भी अपना यूजर का आईपी एड्रेस क्या है और वो जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये सब चीज़ें रिक्वेस्ट से होती है। और रिस्पॉन्स क्या होता है? यूजर को रिस्पॉन्स देना, अपना क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है उसके लिए रिस्पॉन्स देना, ये होता है रिस्पॉन्स का काम। ये दोनों आर्ग्यूमेंट समझ गए होगा। तो अब इसको लॉक कराएंगे कि जब ये फाइनल हमारा यूजर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को फेच कर ले तो उसके बाद हमें कुछ मैसेज शो। तो उसके लिए होगा न्यू रिक्वेस्ट रिसीव्ड, इस तरीके का मैसेज थ्रो होगा। तो इसको स्ट्रिंग में इस तरीके से और इसको खत्म करेंगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, रिस्पॉन्स को एंड करने के लिए जो लास्ट में लाइन प्रिंट होके आएगा हमारे सर्वर पे वो होगा इस तरीके का हेलो फ्रॉम सर्वर। और यहाँ पे हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब सर्वर को एक पाथ देने के लिए, एक लोकेशन देने के लिए कि हाँ इस जगह पे हमारा सर्वर रन होगा, जैसे कोई भी सर्वर है उसको रन कराने के लिए एक लोकेशन ही देना पड़ेगा, ये ज़रूरी होता है उसको एक पाथ देना जहाँ पे वो रन करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माई सर्वर डॉट लिसन वो किस पाथ पे करेगा, 8000 पे करा देते हैं। ये 8001 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब मान लो कि हमें एक प्रोजेक्ट के लिए इस सर्वर को 8000 को काम कराना है, फिर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए 8001 पे लिसन कराना है, तो इसीलिए मल्टीपल सर्वर्स बना सकते हैं बस उसके पोर्ट को चेंज करके। इसको पोर्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। और एक मैसेज थ्रो कराने के लिए एरो फंक्शन देके और सिंपली लिख देंगे अपना एक एरर मैसेज, मतलब मैसेज कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है। जब ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए तभी ये मैसेज शो हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सर्वर पैकेज डॉट जेसन है इसमें जाएंगे और स्टार्ट स्क्रिप्ट अपना है ऑलरेडी नोड सर्वर डॉट जेएस, तो इसको कर लेते हैं। अगर नहीं होगा वहाँ पे तो टेस्ट को चेंज करके आप यहाँ पे नोड सर्वर जो भी फाइल का नेम है वो लिख देना और सिंपली उसको कराना npm स्टार्ट। तो इससे क्या होगा देखते हैं। तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है, मतलब जो भी हमने इसके अंदर लिखा था कि 8000 पोर्ट पे लिसन कराओ और फिर मैसेज थ्रो करो सर्वर स्टार्टेड, वो दोनों हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने सर्वर पे। तो आ चुके हैं हम अपने सर्वर पे और लिखते हैं लोकल होस्ट 3000 नहीं
ये हमारा रन कर रहा है पोर्ट 8000 पे, तो इस तरीके से, और ये हेलो फ्रॉम सर्वर। तो यस, आपने सर्वर क्रिएट कर दिया Node.js पे इस तरीके से, तो आपका फर्स्ट सर्वर ये रहा। तो ये था हमारा कि हम सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कुछ डायनेमिक मैसेज हमें प्रिंट कराना है एक दूसरे फाइल में हमारे सर्वर से, तो वो कैसे कराएंगे हम लोग। तो उसके लिए अपने फाइल मॉड्यूल से fs को कॉल करेंगे सबसे पहले। थोड़ी देर पहले देखा था const fs इक्वल टू रिक्वायर फ्रॉम मॉड्यूल fs। इस तरीके से हम लोग fs मॉड्यूल से ला लेते हैं अपने fs को। ठीक है, अब देखो यहाँ जो हमने लॉग कराया, बस उसके जगह एक क्या करोगे, एक फाइल के अंदर हम डाटा को अपेंड कराएंगे। तो ये फाइल होगा अपना लॉग, कॉन्स्ट लॉग होगा ये अपना फाइल, और इसके अंदर कुछ जाएंगी डायनेमिक डेटा। और डायनेमिक डेटा में हम लोग अभी तक देख रहे थे क्या, डेट डॉट नाउ, तो वो रहता है हमारा बैकटिक्स के अंदर। और वो इस तरीके से हम लिखेंगे डेट डॉट नाउ, हाँ, इस तरीके से, और एक मैसेज के साथ कि हमारा जो न्यू मतलब रिक्वेस्ट रिसीव, इस तरीके से। और ये बार बार लाइन चेंज करे तो इसको स्लैश एन दे देना है ताकि न्यू लाइन में वो प्रिंट। और इस तरीके से ये अपना सर्वर के लिए बन चुका है एक फाइल। इस तरीके से ये अपना फाइल बन गया, और ये डेट डॉट नाउ को इसके अंदर ही रखना है। हाँ, तो ये अपना डेट डॉट नाउ इसके अंदर आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक डॉलर साइन भी होता है जो मिस हो गया मेरे से, तो ये रहा। तो अब ये उसका एक लॉग जो वेरिएबल है उसके अंदर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो चुके हैं। चलो इसको अपेंड कराते हैं फाइल में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, fs डॉट अपेंड जो अपना फंक्शन होता है उसको यूज करते हैं फाइल मॉड्यूल के अंदर। और कौन सी फाइल बनानी है, सपोज फाइल का नेम log डॉट टी, उसके अंदर हमें अपेंड कराना है। तो उससे पहले log डॉट टी बना लेते हैं। तो यहाँ पे log डॉट टी बन गया, और सर्वर डॉट जेएस में log डॉट टी के अंदर ना एक जो होगा अपना log वेरिएबल पास होगा, और दूसरा क्या होगा, एरर के साथ डेटा, एरर के साथ डेटा विथ एरो फंक्शन। अब देखो ये तो है अपना सिंक्रोनस फंक्शन, तो ये तो एक कॉलिंग फंक्शन लेगा ही, तो इसीलिए एरो फंक्शन है जो एरर के साथ डाटा है। अगर ये यहाँ पे सिंक्रोनस फंक्शन होता तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे असिंक्रोनस है तो एरर विथ डेटा कॉलिंग फंक्शन ये सब चाहिए। ठीक है, और हमेशा हम लोग क्या देखेंगे अपने डेवलपमेंट में, हमेशा यूज करेंगे अपने असिंक्रोनस फंक्शन। तो इस तरीके से एंड करेंगे अपने इस सर्वर को रिस्पॉन्स डॉट एंड के साथ। और ये मैसेज ही जो नीचे प्रिंट हो रहा है इसी को यहाँ से लेके जाएंगे, और इस पूरे को इसके अंदर कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैसेज को यहाँ से हटाते हैं, और ये जिस पोर्ट पे लिसन कर रहा है वहीं पे करने देंगे, और इसको कराएंगे सेव। तो ये नीचे आ रहा है न्यू रिक्वेस्ट रिसीव्ड, और log डॉट टी के अंदर कुछ पेंड नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे जो भी था उसको अपने सर्वर पे लिसन कराया, ताकि वो हमें यहाँ पे लॉग हो जाए अपने टर्मिनल में। अगर हम इसको सेव कराए तो इस तरीके से एक बार न्यू टर्मिनल खोलते हैं, और जो भी अगर कुछ मिस हो रहा होगा तो वो यहाँ पे देख लेंगे। तो सर्वर स्टार्टेड, और log डॉट टी इस तरीके से खाली है अपना। तो log डॉट टी के अंदर कुछ भी फंक्शन नहीं हुआ, सर्वर स्टार्ट हो गया था लेकिन अपना, और यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम था। तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जो भी हमें प्रिंट कराना था डेट डॉट नाउ, यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमने जो कराना था वो किया कि नहीं। तो डेट डॉट नाउ जो कि एक फंक्शन है और रैंडम नंबर्स प्रिंट करता है, वही हमें यहाँ पे चीज़ें देगा log डॉट टी के अंदर। और ये सब कुछ सही है, एरर विथ डेटा, और इस तरीके से रिस्पॉन्स डॉट एंड जो कि होगा हेलो फ्रॉम सर्वर अगेन, और यहाँ पे ये प्रिंट करेगा हेलो फ्रॉम सर्वर अगेन। तो सही है। तो इस तरीके से न्यू रिक्वेस्ट रिसीव्ड, और अगेन करते हैं, और फिर चलते हैं वापस अपने सर्वर पे। ठीक है, कराए इसको सेव, अपने सर्वर पे गए और इसको करें रिफ्रेश। तो यहाँ पे भी हमें सेम मैसेज दिख रहा है। तो ये क्यों नहीं दिख रहा कि हमें अपेंड फाइल में ये कंटेंट दिखना चाहिए रिस्पॉन्स डॉट एंड के साथ हेलो फ्रॉम सर्वर अगेन।
तो ये मैसेज हमें शो कराना है, तो उसके लिए देखते हैं न्यू रिक्वेस्ट रिसीव्ड। तो इसको दिखाने के लिए अगर हम इसको करें कमिट आउट और इसको कराए सेव वाई, अच्छा तो ये रहा npm स्टार्ट और node server डॉट जेएस स्टार्टेड। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव हो रहा है अपना, जो भी हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट रिसीव कराना था। तो ये था प्रॉब्लम कि हमें इस लोकल होस्ट को बंद करना होगा, फिर जाके ये जो भी चीज़ें इस अंदर इस फाइल के अंदर, और तो क्रिएट सर्वर सर्वर बना के जो भी चीज़ें हमें फाइल के अंदर सेव करानी है तो वो इस तरीके से होगा, और विदाउट कमेंटिंग ये शो नहीं करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये प्रॉपर फंक्शनिंग है। सर्वर पे गए, वापस से रिफ्रेश करें, तो अब यहाँ पे हमें दिख पा रहा है कि हेलो फ्रॉम सर्वर अगेन। ये थोड़ा सा ब्राउजर इशू था जिस वजह से ये शो नहीं हो पा रहा था, पर ये अभी शो हो पा रहा है। तो चलते हैं अब आगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक जैसे यूआरएल क्या होता है। तो यूआरएल तो सबसे पहले बता देते हैं थोड़ा सा बेसिक, अगले कुछ मिनट बाद यूआरएल पे डीप डिस्कशन करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। यूआरएल बेसिकली होता है एक डोमेन नेम, कि आप किस वेबसाइट का एक डोमेन पर्टिकुलर डोमेन नेम मिलेगा उस पर कैसे काम करना है। तो चलो इसका यूआरएल से रिक्वेस्ट कराते हैं, और अगर इस यूआरएल को लोकल होस्ट 8000 जो हमारा यूआरएल है इसमें हम चेंज करें तो सर्वर में भी कुछ चेंजेस हो और उसके डेटास में भी चेंज हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे अपने यूआरएल को यहाँ पे। तो ये रहा अपना, यहाँ पे बस कुछ नहीं, एक रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल करके एक अपने ऑब्जेक्ट को पास करेंगे डॉलर साइन के अंदर, और इस तरीके से रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल और न्यू रिक्वेस्ट रिसीव्ड, और इसको कराएंगे सेव। तो एक बार और रन करा लेते हैं और npm स्टार्ट, तो कराए सेव, सब कुछ सही है। अब चलते हैं अपने सर्वर पे और इसको कराते हैं रिफ्रेश। चलो, तो ये था अपना यूआरएल बनाने के लिए, कि अगर हमें रिक्वेस्ट कराना है अपने यूआरएल पे तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल कमांड यूज करते हैं। यहाँ पे तो ये रन कर गया था नॉर्मली इस यूआरएल पे, अगर कहीं पे ना करे तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल का यूज कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट का, तो वहां से क्लियरली रन कर जाएगा अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि अब अगर हम इस रिक्वेस्ट यूआरएल को यूज करना चाहें, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट यूआरएल ऑब्जेक्ट को यूज किया है, अब इसी को यूज करके अब हम यूआरएल में चेंजेस करेंगे, और हर एक पॉइंट पे जो भी यूआरएल में चेंज होगा उसके डेटाज में चेंज होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का मेन फंक्शन जो कि है स्विच केस। जब स्विच केस है तो उसका यूज कर सकते हैं। तो इसको एंड करने के बजाय आप क्या करो, उसमें एक स्विच केस लगाओ, मल्टीपल केसेस दो, कि हमारे अगर यूआरएल में ये चेंज आया तो ये आएगा, वो चेंज आया तो कुछ और आ सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल जो आपने ऊपर ऑब्जेक्ट पास किया है बस उसी में केसेस बनाओगे। पहला केस होगा अपना जो फर्स्ट के लिए होता है होम पेज के लिए स्लैश, तो इसके लिए स्लैश बना देते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी नाम रख सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट एंड के साथ ये अपना होम पेज बंद होगा, और यहाँ पे मैसेज के साथ आएगा होम पेज, इस तरीके से। और दूसरा, और ये होने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा। और नेक्स्ट केस होगा हमारा, इसका ले सकते हो इस तरीके से स्लैश अबाउट सेक्शन के लिए अगर करना है तो अबाउट का कर लो, और एंड करो इसको एक मैसेज के साथ रिस्पॉन्स डॉट एंड अबाउट पेज। तो इस तरीके से ये रिस्पॉन्स डॉट एंड और यहाँ पे कॉलन, हाँ, तो ये हो गया। और यहाँ पे कर दो इसको ब्रेक, तो आप देख सकते हो कि ये हमें यहाँ पे शो रिफ्रेश कर दो, और उससे पहले इसको करा दो सेव। तो अब चलो अपने फायरफॉक्स पे, और यहाँ पे करो स्लैश, स्लैश में अपना यही रहेगा जो था, लेकिन अब अबाउट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अबाउट में भी सेम है। तो हमें इस सर्वर को वापस से रीस्टार्ट करना होगा, तभी जाके हमें कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। तो रीस्टार्ट करा और चले वापस सर्वर पे और रिफ्रेश करें तो स्लैश अबाउट पे अबाउट पेज है, और अगर सिंपल हम स्लैश पे जाएं तो होम पेज है, और स्लैश अबाउट ये करें तो ये रहा। तो मेरा थोड़ा सा ब्राउज़र इशू आ रहा था जिस वजह से हमारा
रन नहीं कर पा रहा सेव कराने पे भी। वैसे इसके लिए नोडमॉन करना होता है कि आप कोई भी चेंजेस इसमें करो तो रिफ्लेक्ट होकर तुरंत आपके सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं। तो वो सब चीज़ें हम आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए हम बार बार सर्वर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि वो हम बाद में देखें। तो अभी तो इससे भी काम चल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कि कोई भी डिफ़ॉल्ट केस आ गया। अब डिफ़ॉल्ट केस क्या है कि आपके यूआरएल में कोई भी मान लो जनरल नेम कुछ भी रख दिया, तो उससे डील करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट केस भी बना लेते हैं, जिसमें वो हमें थ्रो करेगा कि ये हम नहीं जानते कि ये आप कौन से पाथ को दे रहे हो। इसके लिए आपको एरर मिलेगा जो कि होगा 404 नॉट फाउंड, इस तरीके से। और ये हमें देगा। तो जैसे अब हम इस अबाउट को चेंज करके हम कुछ भी लिख दें स्लैश दिस दिस दिस, तो फिर से वापस से हमें इसको रन कराना होगा, क्योंकि ये चेंजेस सेव नहीं होते। और यस, npm स्टार्ट। तो ये वापस से स्टार्ट हो रहा है। अब चलेंगे तो चलते हैं यहाँ। तो अब कुछ भी रैंडम लिख देते हैं यहाँ पर स्लैश, तो रन 404 नॉट फाउंड, क्योंकि ये मैंने पास डिक्लेयर ही नहीं किया है, ये डिफ़ॉल्ट केस हो गया, तो यहाँ पे इसीलिए ये एरर था। तो HTTPS सर्वर कैसे बनाना है वो हमने देखा, और इसमें कैसे पाथ्स बनाने हैं अलग अलग चीज़ों के वो भी हम लोगों ने देखा। तो ये था अपना HTTPS सर्वर का। अब हम लोग देखने वाले हैं कि URL क्या होता है, HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है। तो इन सब चीज़ों को आगे देखते हैं। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो तो सही है, पर यूआरएल का यहाँ पे क्या काम होगा? अभी हम लोगों ने देखा HTTPS सर्वर बनाना। तो HTTP सर्वर बना के हम कैसे एक यूआरएल को हिट करते हैं वो भी हमने देखा। जैसे इसको एक बार वापस से रन करते हैं, npm स्टार्ट, और ये अपना सर्वर स्टार्ट होगा। अ, इसके लिए हमें अपने डायरेक्टरी में जाना होगा, cd सर्वर, और यहाँ पे करना होगा npm स्टार्ट, इस तरीके से। और ये अपना सर्वर स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए अपने लोकल होस्ट 5000 पे जाना होगा। 8000 पे था ये पोर्ट, तो लोकल होस्ट 8000, और ये रहा 8000, ठीक है। तो ये हम अपने अपने प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं जो अपना यहाँ पे रेडी हो रहा था और हम लोगों ने किया था। अब देखो, इस पे जाने के बाद ये हमें दिख पा रहा है लोकल होस्ट 8000। तो ये एक यूआरएल है, लेकिन इसमें HTTP अटैच नहीं है, क्योंकि ये हमारे सर्वर पे रन कर रहा है। और HTTP अटैच होने के बाद ये एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ पे रन करेगा। देखो कैसे, जैसे कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो इस पोर्टफोलियो में HTTPS इंक्लूडेड है। अब HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि ये सिक्योर्ड होता है इन कंपैरिजन टू HTTP। इसमें हम लोग जो भी SSL सर्टिफिकेट होता है ये उसको प्रॉपर फॉलो करता है और उसके अकॉर्डिंग रन करता है। तो ये हमारा बहुत सारी चीज़ों से सिक्योर हो जाता है इस मायने में। इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अब देखो, इस यूआरएल को अगर हम देखें तो ये क्या करता है, ये यूआरएल एक पर्टिकुलर वेबसाइट को लिंक करके हमें दिखाता है, जो कि ये दिखा रहा है। अब इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जाना है, जैसे होम वाले सेक्शन में, स्किल्स वाले सेक्शन में, प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में, तो जस्ट हम उस पाथ को इंक्लूड करेंगे जैसे कि हमने अपने प्रोजेक्ट में किया था। ये पाथ दिया था स्लैश का, स्लैश अबाउट का, ऐसे ही करके। तो वैसे ही सारे प्रोजेक्ट का एक पाथ होता है, उस पाथ को यूआरएल में इंक्लूड करो और फिर उस पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करा पाओ डायरेक्ट अपने यूआरएल से। तो इसी तरीके से अपने वहां पे यूआरएल लिखो और उसको एक्सेस करा लो। तो ये था अपना यूआरएल होता क्या है, उसका मेन डेफिनेशन। अब चलो इसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं। जैसे जैसे हम अपने नोड जेएस में कैसे यूआरएल इंस्टॉल करेंगे और उससे कैसे ऑपरेशंस करेंगे। तो सबसे पहले अपने यूआरएल को इंस्टॉल कर लेते हैं, npm install url। तो ये अपना यूआरएल इंस्टॉल हो रहा है। चलो, तो यूआरएल इंस्टॉल हो चुका है, पैकेज.json में ये डिपेंडेंसीज में यूआरएल आ चुका है। तो अब इसको हम लिखेंगे अपने server.js में। server.js में कोई भी चीज़ अगर हम लाइब्रेरी से उठा रहे हैं, अपने नोड मॉड्यूल से उठा रहे हैं, तो उसको उठाने से पहले हमें उसको कॉल कराना होता है। और कॉल कैसे कराएंगे? const url इक्वल टू बाय यूजिंग रिक्वायर फंक्शन, जो नोड.js में यूज होता है, url, इस तरीके से। और ये अब यूआरएल के सारे प्रॉपर्टीज को यहाँ पे ला रहा है। अब देखो,
इसके लिए अब हम एक चीज लिखेंगे, एक कमांड, एक फंक्शन बेसिकली। अगर हमारे रिक्वेस्ट यूआरएल रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इक्वल डॉट या स्लैश favicon डॉट icon ICO, then return response dot end। इस तरीके से अगर हमारा रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल फेविकॉन डॉट आई सी ओ के बराबर हो जाता है, उसके पाथ के बराबर हो जाता है, तो हमें एंड रिटर्न करके देगा रिस्पॉन्स का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। चलो करते हैं, कॉन्स्ट माई यू आर एल करके एक वेरिएबल बनाते हैं, और उसके अंदर क्या लिखेंगे, उसके अंदर लिखेंगे यू आर एल पार्सल। यू आर एल पार्सल में क्या देंगे, यू आर एल पार्स, और उसके अंदर हमारा वेरिएबल होगा रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल। हाँ, तो ये अब हमने यहाँ पे पास कर दिया विद द मैसेज। इसके अंदर अगर मैसेज पास कराना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, यू आर एल डॉट पार्स रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, अपना इसके अंदर चली गया। अब अगर हमें इसको लॉग करके देखना है कि ये हमें क्या पास करके दे रहा है, ये हमें कुछ नहीं, जो भी यूआरएल हमारा करंटली यहाँ पे रन कर रहा है, जो कि है हमारा लोकल होस्ट 8000, उसको यहाँ पे हमें देगा। तो इसके अंदर अपना वेरिएबल पास कर देते हैं जो हमने ऊपर डिक्लेयर करा हुआ है, माई यूआरएल। माई यूआरएल था तो ये रहा माई यूआरएल, और ये इसके अंदर पास हो चुका है। तो उसको अगर हम प्रिंट करके देखें तो ये रहा, जो स्टार्ट करते हैं तो सर्वर स्टार्ट हो चुका है। और इसको अगर हम वापस से यहाँ पर गए और यहाँ पे मानो चलो स्लैश अबाउट किया, और जब हम वापस से अपने विंडोज़ में गए तो टर्मिनल में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सर्वर स्टार्ट हो चुका है विद द यू आर एल स्लैश अबाउट। जो भी हमारा ये यू आर एल था उसमें हमने पाथ डिक्लेयर किया स्लैश अबाउट, जो कि हमने यहाँ पे सर्वर में चेंज किया, और वो सर्वर का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है किन किन चीज़ों के साथ, प्रोटोकॉल नल है, स्लैशेस नल है, ये सब चीज़ें हैं नल, लेकिन इसका पाथ नेम हमें बता रहा है जो कि है स्लैश अबाउट। वो अबाउट सेक्शन को हिट कर रहा है वो यूआरएल, और हमें वो अबाउट सेक्शन की जो भी कंटेंट्स हैं वो हमें दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा यूआरएल वर्क करता है। अब यूआरएल के अंदर कैसे हम लोग कीज देखते हैं, की वैल्यू पेयर होता है, उसमें ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, वो सब चीज़ें हमें धीरे धीरे करके समझ में आएंगी। अब फिलहाल के लिए तो यूआरएल यही था। अगर इसके लिए ज़्यादा जानना है आपको तो आप सिंपली यहाँ ब्राउज़र में जा सकते हो, npm URL डॉक्यूमेंट, URL लाइब्रेरी को जाके पढ़ सकते हो। तो URL लाइब्रेरी में npm में जाओ और फिर सिंपली इसके बारे में डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे वैसे कुछ खास है नहीं यहाँ पे, ठीक है इसमें। तो यहाँ से आप जाके थोड़ी बहुत डॉक्स देख सकते हो कि यूजेस क्या है इसके, इसके टाइप स्क्रिप्ट से में यूजेस क्या है, तो वो भी देख सकते हो। और एपीआई डॉक्स भी पढ़ सकते हो उसका, कि यूआरएल को कैसे हम कॉल कराते हैं। जैसे एक इससे कुछ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे आगे अपने वीडियो सीरीज में, एक यूआरएल शॉर्टनर करके, कि कैसे हम एक लॉन्ग यूआरएल को शॉर्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग शॉर्ट यूआरएल यूज़ करेंगे। तो एक यूआरएल का ही लाइब्रेरी होता है अपना, तो उसको यूज़ करके एक प्रोजेक्ट बनाने वाले, तो यूआरएल वहाँ पे और भी डेप्थ में समझ में आएगा। वैसे यूआरएल में और कुछ बताने है नहीं इससे ज़्यादा खास, तो इसमें यही था। अब हम लोग देखते हैं आगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक